مجھے رحمت کسی بابا صاحب میں نے یہ پہلے بات بتا دی ہے کہ جو کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، سچے دل سے جو یاد کرتا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں، ہاں، جو بھی سچے دل سے مانگتا ہے۔ پر آپ تو اگر کہہ وہ رہے اس ہو کے کہ وہ حق میں آپ نہیں، کہہ رہے ہو دیکھیں کہ وہ آپ نے جرم پوری ہوتا بات ہے۔ نہیں نہ سنی۔ اٹر صاحب نے بھی اس گل کی تصدیق کی ہے کہ مبشرات دعا مانگنا ایک الگ معاملہ ہے اپنے اللہ کے ساتھ، جو دعا کا جو طریقہ ہے نا وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے نا، اس کے اوپر تو کوئی بات نہیں کر رہا۔ ہاں اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میرا ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ مجھ سے بات کرتا ہے، یہ بالکل ٹھیک بات کی علی حق صاحب نے، ایسا معاملہ نہیں جیسے ہے یہ اس طاہر پہ۔ خان صاحب ہے، ایم ایس آر صاحب ہے، ان کا کیا کرنا ہے بھائی؟ سرکار صاحب جو باتیں کرتے ہیں وہ باتیں جو ہیں وہ ہمارے اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے جماعت قادیان میں اس کی کوئی گنجائش ہو کہ وہ اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں تو لوگ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، حالانکہ میں نے تو یہی دیکھا ہے اکثر و بیشتر تو اس بندے کا رد ہی ہو رہا ہوتا ہے جماعت قادیان سے، چاہے وہ طاہر امجد صاحب ہوں، چاہے وہ طلعت ملک صاحب ہوں، چاہے وہ باجوہ صاحب ہوں، ارحم باجوہ صاحب، انہوں نے سب نے آ کے چیمہ صاحب کا رد ہی کیا، کبھی کسی نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ تو جو بات کر رہا ہے بالکل ٹھیک کر رہا ہے، وہ میں بات جب یہ کہہ رہا ہے کہ ہے، میرا اللہ سے وہ ڈائریکٹ رابطہ ہے۔ بات یہ ہے کہ اچھا چلو تسی کر لو، میری گل لمبی ہو۔ یا تیری گل ویسے ہی بڑی لمبی ہوندی ہے۔ بات یہ ہے کہ جس طریقے سے چیمہ صاحب اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں نا، وہ واقعی لوگوں کو اس کو ڈائجسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، اٹ از انڈرسٹوڈ۔ لیکن یہ کہنا کہ خدا کسی بندے کے ساتھ خدا کے ساتھ تو وہ رابطہ ہی ڈائریکٹ ہوتا ہے، خدا اور بندے کے درمیان تو کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ خدا کہتا ہے کہ میں تمہاری شاہ رکھ کے بھی قریب ہوں۔ تو یہ خدا تعالیٰ بولتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، بے شک اچھے اچھے خیال بھی آتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو وہ خیال آ جاتا ہے کہ یہ کام تیرا ہو جائے گا، اور ایسا ہو جاتا ہے۔ خدا فضل کرتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر۔ تو بندے اور انسان کے درمیان کوئی، خدا اور بندے کے درمیان کوئی نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ ہی رابطہ ہوتا ہے۔ یہ کہنا ہے کہ نہیں جی ہو ہی نہیں سکتا، نہیں یہ کہاں ہو سے پایا؟ سکتا ہے بھائی، یہ یا کوئی قرآن میں سے ایک مثال ثابت ہے، مثال یہ ایک قرآن پیش سے کرنے لگا۔ ثابت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو یہ تو انسان کی ہے نا اپنی بات کہ وہ محفل میں ایگزیکٹلی۔ محفل آپ لوگ نا کانسیپٹ کو مکس کر رہے ہیں، ایسے نہ کریں، جو بات ہے وہ کریں۔ یار میں نے جو راجہ ایک بات گل یہ کر رہا کرنی ہے ہے۔ نا بمباسٹک صاحب، وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تو تمہاری شارک کے قریب ہوں، وہ اس سینس میں کہہ رہا ہے کہ جب مجھے کوئی پکارتا ہے، مجھ سے کوئی دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا سنتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ سمیع البصیر ہے، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، لیکن اس کی سماعت، اس کا دیکھنا عام انسانوں جیسا نہیں ہے۔ جیسے میں بھی سنتا ہوں، میں بھی دیکھتا ہوں، میرا دیکھنا اور سننا ویسا نہیں ہے جیسا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا سمیع البصیر ہونا اس کی شان کے لائق ہے، جیسے اس کی شان ہے، جیسے اس کی وہ قدرت ہے، اس کے حساب سے۔ اب اس کو یہ کہنا کہ جیسے میں سنتا ہوں یا جیسے میں بات کر رہا ہوں ابھی براڈ کے اوپر بمباسٹک صاحب سے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی بات کرتا ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے، ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ نہیں وہ کون 13 سال بعد ایک بندہ آ کے کہتا ہے کہ میں نے 9/11 کی پریڈکشن کی تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ 9/11 ہوگا۔ 13 سال بعد 2011 میں 9/11 کا واقعہ ہوا تھا، آپ کو شاید پتا ہو۔ یعنی کہ ایسے واقعات بندہ ایک بات کرے وہ بھی 13 سال بعد۔ ابھی میں نے وہ نا بلومبرگ کی رپورٹ دیکھ رہا تھا، تو اس میں نا فلوریڈا کے یعنی کہ بہت زیادہ طوفان فلوریڈا کا آیا ہوا ہے، تو اس وجہ سے میں وہ دیکھ رہا تھا، تو کل پرسوں کی بات ہے، تو کل آ کے نا وہ کہتے ہیں چیمہ صاحب کے ہواؤں کا عذاب آنے والا ہے دنیا میں۔ انہوں نے یعنی کہ کوئی محسوس علاقہ نہیں بتایا، انہوں نے کہا جی ہواؤں کا عذاب آ، یعنی کہ مطلب کیسی کیا چیز ہے؟ خدا پھر انہوں نے یہ نیوز چینلز کو بنایا ہوا ہے۔ نہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ جیسے نوٹر ڈیم ہے، وہ بھی ایک جیو تھا میرا خیال ہے 13 یا 14 سینچریز میں ہے۔ نوسٹرڈیمس نوٹر ڈیم بھی کہتے ہیں، ہی واز فرینچ، اور اس نے ایسی ایسی پریڈکشنز کی ہوئی ہیں کہ ساری یہ گلف وار کے متعلق جو ہو چکا ہے، ہی پریڈکٹڈ دین، اور لوگ جو ہیں پوری دنیا اس چیز کو مانتی ہیں کہ اس کی جو پریڈکشن سو فار ہے نا وہ پوری ہو رہی ہیں۔ انسان بھی کارٹون جو وہ آپ دیکھیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو موازنہ کر رہے ہوتے ہیں آج کے حالات کے مطابق۔
2005-6 की वो यानी कि कार्टून है सैमसन, आप उनमें देखें जो आज हो रहा है उनमें बहुत पहले बता दिया गया। एडिक्शन वो एक और चीज़ है। अगर कोई साइंटिफिक में फॉर एग्जांपल आज से 20 इयर्स पहले था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, जो स्टूडेंट्स थे वो पढ़े थे ऑलरेडी एज ए सब्जेक्ट इन इंजीनियरिंग, ठीक है ना, कि ये क्या होता है। ओनली स्पेसिफिकली एज ए एकेडमिक सब्जेक्ट लोगों को पता था। उसकी इम्प्लीमेंटेशन के चैट जीपीटी आ जाएगी, आर्टिफिशियल लिम्स आ जाएंगे, इंसान की एप्लीकेशन कम हो जाएगी, नर्सेज की बजाय रोबोट्स जो होंगे वो डिसेबल लोगों के हेल्प कर रहे होंगे, ठीक है। रोबोट्स में इमोशंस डाल दिए जाएंगे, नोबडी कैन इमेजिन। तो आज से तो था ना, लेकिन उसको पढ़ा तो जा रहा था ना, AI तो पढ़ा जा रहा था ना, बट नोबडी कुड एक्चुअली इमेजिन कि ये होगा कैसे। ये इसी तरह है कि 70s में लोग बात कर रहे थे कि जब आपके घर में रोटरी फ़ोन होता था, एक फ़ोन पूरे महल्ले में होता था मुश्किल से PTC का, क्योंकि एप्लीकेशन अगर आप भेजें लाहौर में तो मेरा हाल है को 10 साल बाद फ़ोन आपके घर लगता था। अच्छा जी, उस ज़माने में लोग बातें करते थे कि जी एक ज़माना आएगा जब आप फ़ोन करेंगे तो पिक्चर भी आपकी आएगी। अभी किसी को समझ ही नहीं आती थी कि फ़ोन के ऊपर तस्वीर क्या आएगी, सामने रोटरी फ़ोन पड़ा हुआ है, वो छेड़ते फ़ोटो की में आएगी यार। और अभी आप देख रहे हो हर चीज़। अभी क्या थी, क्योंकि साइंटिस्ट और जो डेवलपमेंट और रिसर्च और डेवलपमेंट थी उनको पता था कि ऐसा हमने करना और होना है, क्योंकि 20, 30, 40 ईयर्स ऑलरेडी टेक्नोलॉजी इन प्लेस होती है, उसको आराम से रिलीज़ किया जाता है पैसे कमाने के लिए। एंड इनिशियली जो सारे भी हार्डवेयर होते हैं वो मिलिट्री के लिए जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। जहाज़ अगर इन्वेंट हुआ था तो वो मिलिट्री के लिए हुआ था, इंटरनेट डेवलप हुआ था तो वो पेंटागन के लिए हुआ था, वो आपके और मेरे लिए तो नहीं हुआ था। और उसकी बहुत साइंटिफिक इन्वेंशन को और कुदरत को इकट्ठा कर रहे हैं। नहीं, आप साइंटिफिक इन्वेंशन की बात कर रहे हैं ना जी कि फलाने ने 11 साल पहले ये किया वो किया। अभी जितने भी सैलाब आने हैं, ये आने हैं, वो आने हैं, उस तरह तो वेदर फोरकास्ट वालों ने नेक्स्ट 10 ईयर्स का चार्ट निकाल के रखा हुआ है और उसमें चेंज कर सकते हैं। आप IT के बंदे हैं? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। अच्छा, वो बात तो ये है कि प्रिया तारा हर टाइम शार्ट रहती है। मैं मराठी और पन्नों की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं मनाता, मुझे पता मैं क्या हूँ। बात कहाँ की हो रही थी और पता नहीं किधर ले गए हैं। बात सिंपल ये हो रही थी कि अगर कोई ऐसा बंदा हो जो वो ये दावा करता हो कि मेरा अल्लाह के साथ डायरेक्ट राबता है, ये था मौजू, उसके ऊपर बात हो रही थी और पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके चले गए। नहीं हो सकता ना, कैसे हो सकता है? इसका सबूत दे दे हमें कुरान और हदीस से। रसूल अल्लाह का राब्ता खुदा से हुआ तो वो तो देखें, फिर वो ये कहे ना कि वो बंदा नबी है। और बशर थे तो उनके पास भी जिब्रील आते थे अल्लाह का पैगाम लेके। यार गल करन देना, एक मिनट नजफ ठहर, जमा उधर ही लेके जाऊंगा। ये बताओ जब हजरत मूसा पहले ये दावा करे कि अगर कोई बंदा ये हजरत मूसा जब माउंट सिनाई पे गए थे तो वो क्या हुआ था? हजरत इब्राहिम को जब इस्माइल की कुर्बानी के लिए गए थे तो वो कौन था? वो फरिश्ता आया सी। ठीक, चले बात कर ले पूरी पहले, फिर मैं जवाब देता हूँ। नहीं, तो इसी तरह बात तुम्हारी ये ठीक है कि खुदा हमारी तरह नहीं बोलता कि मेरी जैसी आवाज़ है, वो अल्लाह की आवाज़ है, वो दिल में ख्याल आता है कि अल्हाम। हज़रत मसीह मौद की जो किताब है ना हकीकतुल वही, उसको कोई पढ़े तो उसमें आपको समझ आती है कि वो क्या तरीक़ाकार क्या है क्या, ठीक है यार। हमारे पास जब कुरान मजीद मौजूद है, हम मिर्जा साहब की किताबें क्यों पढ़े हैं? हमें क्या जरूरत है मिर्जा साहब की किताबें पढ़ने? मैंने रेफरेंस दिया, तू ना पढ़ यार। मैं आपको बताने लगा हूँ, सुन ले। तो यार एक तो बंदा गल नहीं करने देता। अब आपने बात कर ली, मुझे बात करने दे। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜੋ ਜ਼ਰਾ। मुला मिर्जा साहब की किताबें ही पढ़ते रहते, अंदर कोई भी नहीं होया। वो सिर्फ अहमदियों वास्ते पाकिस्तान में मन है, ये पढ़ते। इल्मी गल हो रही है, इल्मी रखने आ, फिर माहौल खराब हो जाना, बराड़ दा मशीनां गर्म हो जानियां ने, तारां शार्ट हो जानियां ने, फिर फायदा नहीं। मैं देखो तुसी गल कीती है एक 30 सेकंड की बात यार, मेरी गल हमेशा लंबी हो जाती है हमेशा। आज अब्दुल ने जो ना हुसैनी साहब को बड़ी गालियां दी हैं। आई वाह। अच्छा पहली बार ये होया साहब मरज़ैया ने पहली बार गालां कढ़ियां ने। किसने गालियां दी हैं? अब्दुल नाम का एक बंदा था, उसने हुसैनी साहब को गालियां दी।
फिर उनकी करिए सीधा सी यार कि एक अच्छी बात है। मोहन अब्दुल साहब ने फांसी ला दिए। राजे गल करा कुरान से क्या और आगे गल कर रहे हो। चल थैंक यू कैसर साहब बड़ी इल्मी गल कीती तुसी। अच्छा इंज करो कैसर साहब सुना ही दियो फिर केड़ियां गालां कड्डियां ने लगे। तुम्हारे माइंड नहीं नहीं वो कोई जरूरत नहीं है। मेंटालिटी ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बात हम ये कर रहे थे कि मैंने बात की थी एक आम इंसान की, एक आम शख्स की। जब हम बात करेंगे पर्टिकुलर पर्सन की दैट इज लाइक यू सेइंग कि वो नबी है, अब ये एक डिफरेंट चैप्टर शुरू हो गया यहाँ से। अभी तक जब हम बात कर रहे थे वो थी आम इंसान की बात हो रही थी, जैसे चीमा साहब हैं या वो वदूद साहब हैं या कोई भी आदमी उठता है जमात से और वो ये कहना शुरू कर देता है कि मेरा अल्लाह के साथ राब्ता है और मुझसे अल्लाह ताला डायरेक्ट कलाम करता है। ये एक डिफरेंट टॉपिक है। अब जो आपने बात बीच में डाली है ना, या तो आप कहें कि वो जितने लोग हैं वो नबी हैं, मैं उनको नबी मानता हूँ, उनका नबूत का दावा है, MSR या वदूद या जायद रसूल या जो भी जितने भी लोग हैं, फिर तो बात एक अलग तरफ चली जाएगी। अब जो आपने बात की है ना वो है अल्लाह के चुने हुए लोग, ठीक है, और उनसे भी अल्लाह जो है वो बात करता है। उसका तरीके हैं 3। अल्लाह ताला कुरान पाक में यही इरशाद फरमाता है कि किसी इंसान के लिए ये नहीं है कि अल्लाह उसके साथ डायरेक्ट बात करे, हाँ मगर 3 तरीकों से। अब ये है नबी के साथ कलाम करना, जैसे आप अभी आपने मूसा की मिसाल दी, इसी तरह जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही लेके आते थे, और इस तरह तीसरा पर्दे के पीछे से या वही करके या जैसे भी अल्लाह ताला चाहता है, ठीक है। तो ये तरीके कुरान पाक में ऑलरेडी लिखे हुए हैं और ये हैं उन लोगों के लिए जो नबी हैं। अब नबूत का सिलसिला हो गया है बंद, अब और कोई नबी नहीं हो। अल्लाह ताला यार मेरी गल नहीं पूरी हुई सी। और सुनो ना, आपने जो बात की है ना कि पर्दे से पीछे अल्लाह ताला बात करता है, यहाँ वही के जरिए, यहाँ रसूल भेज के उनके थ्रू, आप भूल गए हो ये भी है कि रसूल भेजता है। वही जो जिब्राइल है उनको ही रसूल कहा गया ना। ठीक है सवाल मुकम्मल करें। हमारे साथ हमारे तक जो नॉलेज पहुंचा वो तो रसूल ही बताते हैं। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो जिब्राइल को नहीं ना देख सकते, ना उनके साथ हम कलाम हुए हैं। अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ताला यही फरमा रहा है कि अल्लाह ताला चुन लेता है इंसानों में से और फरिश्तों में से अपने रसूल। सुन लिया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल के तौर पे मस्जिद नबवी में बैठे होते थे तो जिब्राइल आते थे और उनके ऊपर वही नाजिल होती थी। बल्कि एक दफ़ा कुरान का पूरा दौरा उन्होंने करवाया और सवाल पूछे, और ये नंगी आंखों के साथ सहाबा किराम ने देखा मस्जिद नबवी में, और उन्होंने पूछा कि या रसूलल्लाह ये कौन थे? कहते ये जिब्राइल था। ये वाक़या हुआ है, ये हदीसों में भी है, हिस्ट्री की किताबों में भी है कि ऐसा हुआ एक्चुअली कि जिब्राइल को देखा सहाबा किराम ने खुद मस्जिद नबवी में। अभी बात ये है कि जो साइंसदान है जैसे न्यूटन या आइंस्टाइन है, जिन्होंने हमारी आज की ज़िंदगी बनाई है, एडिसन था, वो तो नबी और रसूल नहीं थे, लेकिन खुदा ताला ने उनके ऊपर अपने राज नहीं खोले। उनके मतलब क्या कहते हो? जैसे कहते हैं ना कि नेचर एंड नेचर्स लॉ ऑल लेड इन हाइड, गॉड सेड लेट न्यूटन बी एंड ऑल वाज लाइट, कि जितने भी कायनात के जो राज थे वो छुपे हुए थे और खुदा ने वो तमाम न्यूटन पे खोले, और हर चीज़ जो है रोज़े रोशन की तरह जाहिर हो गई कि उसने जो अपने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए हैं उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जो हमारी मॉडर्न ज़िंदगी है सारी उन पे डिपेंड करती है। जो आइंस्टाइन ने किया हाउ टू हार्नेस द एटॉमिक एनर्जी, क्या ये थोड़ी सी बात है? ये खुदा ताला बाज़ लोगों पे राज खोलता है, हर किसी को नहीं बताता। जैसे ग्रेविटी जो थी, वो सेब ऊपर से गिरता है तो असी तो धो के खा लांगे। न्यूटन ने कहा कि ये क्या चक्कर है अभी कि हर चीज़ जो है वो ज़मीन की तरफ ही आती है, देयर मस्ट बी ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर वहाँ पे सोलर सिस्टम की तरफ गए एंड द पीपल केप्ट ऑन डिस्कवरिंग कि ये कैसे है जो पूरा निज़ाम शमसी चल रहा है, सूरज के गिर्द क्यों पूरे डिफरेंट किस्म के प्लैनेट जो हैं वो चक्कर लगा रहे हैं, बिकॉज देयर इज ए ग्रेविटी, देयर इज अ फोर्स विच इज कीपिंग देम अराउंड। ठीक है, तो ये लोग बेशक इनका रसूल और नबी का दावा नहीं होता, लेकिन खुदा ताला इंसान की भलाई के लिए इनके थ्रू भी इल्म देता है और खोलता है राज नेचर के, जिसकी वजह से इंसान में तरक्की होती है। अभी किसी नबी और रसूल ने आपको बिजली नहीं दी, पानी नहीं पहुंचाया आपके घर तक, आपको फ़ोन नहीं इन्वेंट करके दिया कि हज़ारों मील आप कम्युनिकेट कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये वो लोग थे ग्राहम बेल और अदर के जिन्होंने ये चीज़ें आपको दी जो कि इंसान की भलाई के लिए हैं। मेडिकल आलात नहीं किसी ने आपको दिए,
मेडिसन और फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट हैं वो किसी नबी रसूल ने नहीं दिए। क्या वो लोग जो थे खुदा ताला ने उनके ऊपर राज नहीं खोले कि ढूंढने आप कोई और चीज़ जाते हैं और इन्वेंट पेनिसिलिन हो गई है? उससे पहले लोग इन्फेक्शन से मर जाते थे, एनेस्थीसिया का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, लोगों को छोटा से छोटा ऑपरेशन करो तो दर्द से ही मर जाते थे। अभी एनेस्थीसिया के पूरा जिस्म खोल देते हो एंड इट इज़ फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम। तो क्या उनके साथ तो कोई नबी और रसूल का टाइटल नहीं है और ना वो खुद अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं? उनमें से कई तो एथीस्ट हैं जो खुदा को मानते ही नहीं है, सिवाय एक साइंसदान जो था वो डॉक्टर अब्दुल सलाम। पूरी दुनिया कहते कि एक है जो खुदा को मानने वाला है कि जिसने नोबेल प्राइज़ लिया है, बाकी सारे ज़्यादातर एथीस्ट ही होते हैं। लेकिन खुदा उनके ऊपर उनके साथ हम कलाम होता है और उनके ऊपर अपने राज खोलता है। तो ये बात नहीं है कि आम बंदे के साथ खुदा नहीं बात करता और सिर्फ नबी और रसूलों के साथ है, बिल्कुल गलत है। खुदा अपने राज उनको बताता है इंसान की भलाई के लिए। जी शुएब राजा, कुछ समझ आई? समझ क्या नहीं है, मैं फिर वही बात करूंगा कि टॉपिक कुछ और था और दोबारा से फिर बम्बास्टिक साहब एक दफा फिर से किसी और ट्रैक पे निकल पड़े थे। देखिए ये जो बातें आप कर रहे हैं साइंसदानों वाली या ये अकली बातें जो कर रहे हैं, ये तो कुरान पाक में खुद लिखा हुआ है कि तुम गौर और फिक्र करोगे तो अल्लाह की निशानियों को तो तुम खुद पालोगे। जैसे जितनी कायनात के अंदर जितनी भी ये चीजें हैं, अगर इनको आज से पहले किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया तो किसी ने कर लिया, तो ये इसके बारे में भी अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ है कि तुम गौर फिक्र करोगे तो तुम्हें नजर आ जाएगी हर चीज। मिसाल के तौर पे हम पजल खेलते हैं या एक हाइड एंड सीक कोई ऐसा मतलब गेम्स खेलते हैं जिसमें उन चीजें उन्होंने छुपा छुपा के रखी होती हैं और आप डिफरेंट वे से हो के जाते हैं और वो चीजें जाके उठाते हैं और वो पूरा एक टास्क कंप्लीट करते हैं। तो जब तक कोई बंदा वहां से मतलब एफर्ट नहीं करेगा, निकलेगा नहीं उसके खोज में, तो वो उनको हासिल नहीं कर सकेगा। बाहर खड़ा होकर बंदा वो कहता रहे कि मैं अब अल्लाह ही है जो मेरे दिल में ये बात डाल दे, या मुझे अल्लाह ताला ही बताए कि फला फला जो चीज़ मैंने ढूंढनी है वो कहाँ पे पड़ी हुई है, तो पहले अल्लाह ताला मुझे बताएगा तो फिर मैं जाके ढूंढ लूंगा। और भाई ऐसे नहीं होता। वो बंदा जाके उसमें एक्चुअल उस मैदान में उतरता है और फिर जाके वो खोज लगाता है और तब जाके उसको चीज़ें मिलती हैं। समटाइम एक जगह पे वो जाता है, उसकी ये सोच होती है कि हो सकता है वो चीज यहाँ पे हो, लेकिन वो जब वहां पे जाता है कि नहीं होती, तो वहां से वो दूसरी तरफ चला जाता है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे भी आपने कहा कि इजाद कुछ करने के थे, आगे से मिल कुछ गया, इंटेंशन कुछ और थी, निकल कुछ और आया। तो इससे ये साबित नहीं होता कि अल्लाह ताला ने उसके साथ कलाम किया था, उसको पहले ही बता दिया था कि तू फलां जगह पे जाएगा तो तुम्हें ये खजाना मिल जाएगा। ऐसे नहीं होता। ये जो बातें आप कर रहे हैं ना, इनका आप मतलब सिर्फ अकल से इसको सोच तो रहे हैं, लेकिन इसको प्रूव करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। मैं जो बात कर रहा था वो ये थी कि किसी बशर के लिए ये जायज नहीं है कि अल्लाह उसके साथ डायरेक्ट कलाम करे, लेकिन 3 तरीकों से, और वो भी सिर्फ उनके लिए हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपना पैगाम देना होता है, जो नबूवत के मनसब के ऊपर फायज होते हैं, और वो चुने हुए लोग होते हैं। हर किसी के लिए ये बात नहीं है। और जो 3 तरीके से अल्लाह ताला ने अपने बंदू के साथ कलाम करना है, उसके 3 तरीके पहले लास्ट टर्न में भी मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा अगर कोई बंदा ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो थे, हजरत उमर हमारे जो खलीफा दोम थे, उनके ऊपर तो वही होती थी, वो नबी और रसूल तो नहीं थे, उनके ऊपर वही होती थी। आपको किसने कहा है कि उनके ऊपर वही होती थी? पढ़ लो, पूछ लो जिससे हजरत उमर के ऊपर दो ना सबूत दो, चलो सबूत दो कोई। इसीलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे अगर बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते और मेरे बाद कोई नबी नहीं है। ये पता ही नहीं है आपको। तो दूसरी बात ये है कि आपने यार ये देखिए क्या बात कर रहा है जिसका कोई इल्म के साथ तल्लक ही नहीं है। ओ यार वो भाई मैंने माफ कर दे यार, जब अब लेकिन अपने उलमान अपने उलमान पूछ ली जो सीरियस बात ना करें अब बम्बास्टिक साहब। आप इल्मी मैदान में बैठे हैं, इल्म की बातें कर रहे हैं, तो उसमें आप इतनी कोई शुरली छोड़ देंगे तो फिर अगले सबूत तो मांगेंगे ना आपसे। आपने इतना बड़ा दावा कर दिया है कि हज़रत उमर पे भी वही नाज़िल होती थी, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। ये बात नहीं थी यार।
او یار یہی والی بات تو حضرت علی کے بارے میں بھی فرمائی ہوئی ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا جیسے غلط کر لیندے نا غلط کر لیندے ہو نبی رسول محدث اور وہی جڑی ہے تانوں وڈدی کیوں ہے مینوں سمجھ نہیں آندی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا نا کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، اور جو حضور اب صرف مبشرات باقی ہیں، اور مبشرات اچھے خواب، جیسے واٹر صاحب نے آگے بتایا کہ مجھے خواب آتے تھے، یہ تو بات ٹھیک ہے. بندے مجھے خواب نہیں آتے تھے، مجھے ایک دن خواب آ گئے تھے. اچھا بھائی میری گلاں دا غلط مطلب نہ کر دے، بڑی مہربانی. نہیں یار، آپ کو روز خواب آئیں، آپ کو روز خواب آئیں، کوئی مسئلہ نہیں. بات میں یہ کر رہا ہوں کہ جتنی بات قرآن اور حدیث کے اندر لکھی ہے ہم نے تو وہی ماننی ہے، اس سے باہر تو نہیں مانی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، اب صرف مبشرات باقی ہیں. جی واٹر. ہاں بات پتہ ہے کہ آپ نے بی ایس سی کی ہوئی ہے، بی ایس سی کی جو انگریزی کی بی ایس سی نہیں کی، میں بزنس کا اسٹوڈنٹ ہوں اس لیے میں نے بی ایس سی نہیں کی. جو انگلش کی کتاب ہے نا اس میں ایک چیپٹر ہے، اس کا نام مجھے بھول گیا، چھوٹی سی انگلش کی کتاب ہے. شیکسپیئر نہیں اس میں ایک چھوٹا سا ہے مسٹر چپس. تو اس میں کہتے ہیں کہ زیادہ تر انوینشن جو سائنسدانوں نے کیے ہیں نا وہ آدھی رات کے درمیان یا جب بندہ نیند اور جاگنے کی حالت کے درمیان میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انسان کے دماغ میں نا بہت سارے کیمیکلز جو ہیں نا وہ سکریٹ ہوتے ہیں دن کے مختلف ٹائموں میں. تو جن لوگوں کو انگزائٹی، پینک، ڈپریشن کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں نا، وہ تھوڑا سا ان کا کیمیکل امبیلنس ہو گیا ہوتا ہے. تو وہ اس میں ایک پورا چیپٹر لکھا ہوا ہے کہ جتنے بھی سائنسدانوں نے ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے ویسے آپ بالکل ٹھیک ہے انوینشن کیے ہیں وہ نیند اور جاگنے کی حالت میں کیے ہیں. کئی دفعہ آپ کو خواب بھی، جو سچا خواب آتا ہے نا لوگوں کو، اس کے فوراً بعد بندے کو جاگ بھی آ جاتی ہے. تو یہ جو انسان کا دماغ ہے نا، یہ لاشعور جو ہے، یہ ایک بہت بڑی اب فلسفی ہے، یہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور کسی سے پوچھ بھی سکتے ہیں. تو یہ کیمیکلز مختلف سکریٹ ہوتے ہیں اور وہ آپ کے بائیولوجیکل کلاک کے حساب سے نارمل آدمیوں کے سکریٹ ہوتے ہیں، لیکن چند حالات کے اندر پریشانی میں زیادہ اینکشس ہو بندہ، زیادہ محنت کر رہا ہو، کسی چیز کی جستجو کر رہا ہو، تو ان کیمیکلز کا رسپانس جو ہوتا ہے نا وہ اور طرح سے آتا ہے. تو اس سے بندہ اگلا زمانہ اور پچھلے زمانے میں بھی تھوڑا سا سکپ ہو جاتا ہے، انوینشنز بھی کر لیتا ہے اور چیزیں بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اس دنیا سے باہر کی بات. واٹر بھائی، یہ شعیب راجہ کہہ رہا تھا کہ جو بندہ ہوتا ہے جب بھی کسی رٹ میں آ جاتا ہے کہ وہ ڈھونڈتا ہے، جستجو کرتا ہے، تو مل جاتا ہے. اور یار میں نے تو اتنا پڑھا لکھا، مینوں تو کوئی چیز نہیں میں انوینٹ کر سکیا. ہر بندہ جو پڑھتا لکھتا ہے اس کی قسمت میں یہ انوینشنز تو نہیں ہوتی جو نیوٹن یا آئنسٹائن کے یا ان کے ڈاکٹر عبدالسلام یا دوسرے سائنسدانوں کے حصے میں خدا تعالیٰ نے وہ انعامات رکھے. جی. اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ہمارے، نعوذ باللہ، کیا وہ نبوت اور رسالت ڈھونڈنے جاتے تھے عبادت جب کرنے، جو غار سور میں یا غار حرا میں جاتے تھے؟ وہ تو تفکر اور تدبر کر رہے تھے جو خدا تعالیٰ نے ان کے نطفہ میں شروع سے رکھی ہوئی تھی، وہ چیز جو کہ نبیوں کی ہوتی ہے. ان کی تو کوئی خواہش نہیں تھی، یا ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں نے نبی بننا ہے، کوئی بھی نہیں پتا تھا ان کو. بالکل صحیح ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جو ڈھونڈنے نکلتا ہے، جیسے وہ پزل ہم کھیلتے ہیں تو اس میں ہم گھس جاتے ہیں، تو پھر ہم نئے نئے رستے دریافت کرتے ہیں تو ہمیں مل جاتے ہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی کہے کہ جی میں نے نبی بنن دا شوق ہے، نعوذ باللہ، تے ایس کر کے میں ان اللہ دی عبادت پہ کروں؟ غیر نبی کو اور نبی کو مکس کر رہے ہو یار. میں انسان کی بات کر رہا ہوں، میں نبی و غیر نبی کی بات ہی نہیں کر رہا. یہ شعیب راجہ سارے نبی جو ہوتے ہیں وہ غیر نبی ہوتے ہیں. اس سے اللہ تعالیٰ سے ہر خدا انسان انہیں حکم نہیں کرتا کہ تم میرے نبی ہو. وہ سارے غیر نبی ہوتے ہیں، انسان ہی ہوتے ہیں، بشر ہی ہوتے ہیں سارے. ان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں خدا تعالیٰ نے نبوت اور رسالت عطا کر دینی ہے. حضرت موسیٰ کو خدا تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ ایجپٹ واپس اور میرے لوگوں کو آزاد کراؤ. تو حضرت موسیٰ نے کہا یا خدا میں، اور مجھے تو میرے تو زبان میں لکنے تھا، میں تو صحیح طرح بات بھی نہیں کر سکتا، تو میری یہ بات کیسے سمجھے گا فرعون؟ خدا نے کہا کہ جا، میں تجھے حکم دیتا ہوں، یہ سارا کام تو میرا، تو آگے بس میرا پیغام تو نے پہنچانا ہے. تو اس لیے خدا جس کو مرضی چنتا ہے، جب مرضی چنتا ہے، ارسپیکٹو، اس کا کوئی سوشو اکنامک سٹیٹس نہیں ہونا چاہیے، وہ کوئی دنیا کی نظر میں جینیس نہیں ہوتا، وہ سونے سونے کپڑے نہیں پہنتا، اس کا ماں باپ کوئی راجا مہاراجا نہیں ہوتا.
तो इसलिए आई डोंट नो, बहरहाल आपके अपने कॉन्सेप्ट है, नहीं अल्लाह ताला की शान नहीं है, वो बात नहीं कर बंदे ने गल ही नहीं कर सकता जी। वो खुदा ने बंदे को पैदा ही इसलिए किया कि मुझे पहचानो। हाँ, खुदा ज़बान नहीं बोलता, ना चाइनीज़ बोलता है वो, ना वो अंग्रेज़ी बोलता है हमारी तरह, ना उसकी आवाज़ आती है, दिल में ख्याल आता है। एक वही इल्हाम का या मुबशरात का एक तरीक़ाकार है जो कि आम बंदे की बात या कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं उसकी तरह नहीं है जैसे हम बोलते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने तो हर बस्ती और हर कम्युनिटी में नबी भेजे हैं और वो दूसरे मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बोलते थे और खुदा उनकी लैंग्वेज के मुताबिक उनके साथ कम्युनिकेट करता रहा, नॉट वर्बली, क्योंकि खुदा की ज़बान तो है नहीं, ना आवाज़ है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट के बंदे के साथ खुदा डायरेक्टली रब्ता नहीं कर सकता, सिर्फ नबी और रसूलों के साथ ही होता है। आई डोंट थिंक सो। खुदा बात करता है, आज भी करता है, कलाम करता है अपने लोगों के साथ, और ये होता रहेगा जब तक इंसान बनी नो इंसान इस ज़मीन पर है, जब तक इंसान की सफ़ ना लपेटी जाए। खुदा अपने लोगों को मुंतखब करता है, उनके साथ कम्युनिकेट करता है। जी, हो गई कुछ तसल्ली शुएब साहब? रब ने करानी। थोड़ी देर तक ना तुहाडे नाल गल करदा मैं, एक ना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ी देर तक मैं तुहाडे नाल करदा। मीर साहब जाना ना नजफ लगता किसी नाइट क्लब विच बैठा है ना पीछे म्यूजिक। चलें सर, आज लगता है इनकी भाई की तसल्ली हो गई है। उन्हें तसल्ली ने कल इन्होंने फिर होते दी होते ही होना। अच्छा ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਿਊਟਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਲਾਮ। ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੋ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਯਾਰ ਨਿਊਟਨ। ਮੇਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਸੁੱਟ ਦੇ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਦੀਸਾਂ ਨੂੰ ਸਟਿਆ। ਵੇ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਦੀ ਦੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਟੋਕਰੀ। ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸੂਲullah ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਖਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਰ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਯਾਰ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਆਪਣਾ, ਚੱਲ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਕਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕਲਾਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਤੇ ਸਮਝਾਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤਬਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਬਲੀਗ ਲੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। बस सर, हो गई आपकी तबलीग आज की। अबू जाहल तो तबलीग हो गई सी, खुदा का सबसे बड़ा नूर सामने था। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਉਹ ਅਬੂ ਜਹਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਲੇ, ਉਹ ਅਬੂ ਜਾਹਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਸ਼ਰੀਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 6-7 ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਆ ਜੇ। ਤੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਬਾਰਤ खुदा ताला कहता है कुरान को तड़ा ना करें, अच्छी तरह एक दूसरे को मुहातब करें। बमबासिदा ये तू तड़ा ना करें। अबू बकर साहेब, बात ये है कि कुरान करीम फरमाता है कि हुदल लिल मुत्तकी, कि ये हदायत है मुत्तकियों के लिए। इसका मतलब कि जो बंदा मुत्तकी नहीं है उसको हदायत ही नहीं मिलेगी। अच्छा, तज़किरा के लिए भी अल्लाह ताला यही फरमाता है कि तज़किरा जो है हदायत है मुत्तकियों के लिए। बिल्कुल, वो भी खुदा ताला का ही कलाम है ना, यानी कि कुरान की तरह ही है ना। कुरान की तरह ही है मिर्ज़ा साहब के सब कलाम, और वही जो भी है। हाँ यानी कि फिर आज आप तस्लीम करते हैं ना, मिर्ज़ा साहब पे कुरान की तरह का एक कलाम नाज़िल हुआ है। जी हाँ, मैं तस्लीम करता हूँ। इल्हाम वही, अगर सोर्स वही है, क्योंकि कुरान भी खुदा ताला ने नाजिल किया और जो वही इल्हाम मिर्ज़ा साहब पे करता था वो भी वही खुदा है। तो वो डॉक्टर ज़करिया साहब आपके जो हैं सीनियर हैं और आपकी मतलब जमात के अंदर उनका बड़ा मुकाम है, आपकी तो उनके सामने कोई वैल्यू भी नहीं, और वो कहते हैं कि तज़किरा मेरे लिए हुज्जत नहीं। आपको कैसे पता है कि मेरी वैल्यू नहीं, और आप कैसे ग्रेडिंग कर रहे हैं हमारे जमात के बंदों की? अच्छा, चलें, आपकी भी वैल्यू होगी। आपकी भी वैल्यू। पहले इस पे बात कर लेते हैं कि कौन है हम में से बड़ा। वाटर का क्या मुकाम है जमात में, मेरा क्या है, ज़करिया का क्या है, और वो अच्छा, मुअल्लम आज़म सैफी तो आपके जमात में मुकाम रखता है ना, मुअल्लम है वो।
मौलम है, ठीक है, वो मुरब्बी हैं। हाँ, जो वो कादियान में रहते हैं, मैं कभी फिजिकली तो नहीं मिला, मैं उनको जानता भी नहीं था टिकटॉक से नहीं, पहले। अभी तो वो यूरोप में शिफ्ट हो गया है और अभी बाकायदा तंजीम उसे पैसे दे रही है। तंजीम पैसे दे रही है, तो मौलम को तो वैसे शुरू से पैसे देते हैं। मतलब अभी उसको फैसिलिटी उसी ज्यादा कर दी है ना। नहीं नहीं, वो इतनी होती है, इतनी भी होती है यार, इन्होंने कितों खबरां मिलती है नहीं। अच्छा, ये पता नहीं क्या सोच के बैठे हुए जैसे हमको मरीज से आए हुए हैं, और भाई ऐसी भी पाकिस्तान फैसिलिटी मिलती है उनको जमान ने मर्सिडीज ले दी है, यार BMW ले दिया। आप ਇਹਨੂੰ ਛੋੜੋ, ਕੋਈ ਇਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਅਬੂ ਬਕਰ ਬੇਜ भाई ਉਹਦੇ ਹਾਲ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ, उधर आओ टॉपिक वाल। पॉइंट से हट जाएंगे। मैं ये कह रहा था कि से इनका ये हमेशा से यही तरीका रहा है कि पॉइंट से हटा देना अगर जी। अगर नहीं भाई, हम नहीं point से हटाते। अगर मौलम आजम सैफी अगर मौलम आजम सैफी भी कह दे कि तज़किरा हुज्जत नहीं है हमारे लिए, सीरतुल मेहदी भी हुज्जत नहीं है हमारे लिए, तो फिर बैठा है। मैंने ऐसी बात सुनी कि जवाब लेना हो तो मुरब्बी या मौलम से ही ले लिया करें, हमारे से तो सादे सादे हम आपको जवाब दे सकते। अब आपके लिए भी तज़किरा हुज्जत है वैसे? यार मैंने तो एक दफा भी नहीं पढ़ा हुआ कुरान शरीफ, मैंने 100 दफा पढ़ा हुआ। तो ये हजरत तो कह रहे हैं यार मिर्जा साहब के इल्हाम वाली किताब आपने नहीं पढ़ी, वही और इल्हाम। और सुनो यार सुनो कितना सुनो अफसोस की भाई, बात है मैंने यार। जो कहा है, मेरे मुंह में वो अल्फाज ना डालो। तज़किरा हमारे ऊपर, मेरे ऊपर हमारे नहीं, मेरे ऊपर उतनी हुज्जत है जितनी कि हदीसें हुज्जत है। अगर उसमें तज़किरा में भी कोई चीज़ ज़ईफ हो सकती है, क्योंकि तज़किरा मसीह मौद ने नहीं लिखी, उनके बाद अभी आपने कुरान की तरह उसको करार दिया, अभी हदीस की तरफ चले गए। इस है लो नवी सुन लो। नहीं, ये देखे, ये पैरों भी फिर गए। अभी वो कह रहे थे कुरान की तरह है वो। वो तज़किरा हदीस बन गई जी, लो जी नवी सुनो आज। मैंने ये कहा है अबू बकर साहब कि हज़रत मसीह मौत की वही और इल्हाम जो है उसका सोर्स एक ही है, जो कि कुरान का था। खुदा ताला बम्बास्टिक साहब, अभी आपने ये मैं रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ साथ साथ। जाता तज़किरा कभी हदीस बन जाता, की करी जा रहे हो बम्बास्टिक साहब, घुमाई जा रहे हो। क्या कर लेंगे यार। मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा जो मैंने कहा। अपलोड करेंगे ना, लोग सुनेंगे, ओ देखेंगे। यार तू यूट्यूब करें में सर, तो सेट बिल्कुल कॉम दे कह तू टिकटॉक के ऊपर लगाएंगे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। हम बड़ा डरेंगे यार आपसे, बहुत पहले डरेंगे। को मैंने फर्क पिया जड़ा नहीं, डरने की बात नहीं है। हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं और लोगों को दिखाना चाहते हैं कि टिकटॉक के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी मरज़ई आते हैं, हर मरज़ई का अपना अकीदा है, किसी का अकीदा दूसरे के साथ मिलता ही नहीं है। तो यार बदलना चाहिए, जिद्दत होनी चाहिए, इंसान को सोचने की आजादी है। अकीदा तो कम से कम एक होना चाहिए। हाँ, अब तो मिसाल हमारा के अकीदा तौर पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह एक अकीदा है। आगे क्या फर्क है? आप देखें यहाँ पे आप दो जो है जमात अहमदिया के बंदे बैठे हुए हैं, 4 बंदे बैठे हुए मुसलमान। हाँ अब हम जी। चारों में से कोई एक बंदा भी कह दे कुरान के बारे में कि कुरान को हम हदीस समझते हैं, नहीं कुरान को हम कुरान ही समझते हैं, नहीं हम कुरान को हदीस समझते हैं, अबू बकर कोई एक भाई, बंदा कह दे। यहाँ पे अच्छा, एक आप बात लोगों का का मसला जवाब ये तो है कि देने ये दे। बम्बास्टिक साहब अभी कह रहे हैं तज़किरा जो है कुरान की तरह है, फिर कहते हैं नहीं वो हदीस की तरह है, और नहीं वो कुरान की तरह है। अच्छा ये अबू बकर भाई, ठहरो जो सर बम्बास्टिक साहब एक मिनट ठहरना, यार एक वाटर मिनट। मैंने जो बात की है ना, अच्छा, हुक्म वो करें। मुझे ये एक्सप्लेन करने दो। हाँ हाँ हाँ। इनकी अकलदानी होती है, छोटी चीजें स्लिप हो जाती हैं उसमें से ना, तो ठहरो। इसने क्योंकि ये बंदे को ना जान के फंसाने की कोशिश करते हैं, जो एक्सपेक्ट करते हैं ना जवाब हेलुसिनेशन के थ्रू, वो उसके दिमाग में पहले ही बैठा होता है, कहते हैं नहीं कहना तो है ये जवाब। अच्छा, इसने मुझे कहा कि आप तज़किरा को कुरान, आप ये तज़किरा गलत को जवाब दे, भी, मैं रिकॉर्ड कर लूं। आप तज़किरा को भी कुरान की तरह समझते हैं जी। मैंने कहा जी अगर उसमें वही और इल्हाम है हज़रत मसीह मौद का, तो उसका सोर्स वही है जो खुदा जो वो तू हासिल है पहले यार, एक खसी बटेरे वगना हसते ही जी मैं गेर नहीं फंसे होते पुरानियां गड्डियां दे कारबोरेटर वाला। अच्छा एनीवेज, तो मैंने कहा कि अगर इल्हाम और वही का जो मिर्ज़ा साहब पे आती हैं उसका सोर्स वही है जो कुरान का है, यानी कि खुदा ताला, तो मेरा ईमान तो वही है, वो कुरान की तरह ही है। अभी जो तज़किरा में अगर ऐसी वही और इल्हाम है जो कि सच्ची हैं, जैसे हदीसें सच्ची होती हैं, तो फिर ठीक है, वो कुरान की तरह ही उनका सोर्स भी है। अगर नहीं है, कोई ज़ईफ़ है, तो वो नहीं है, फिर उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। जैसे हदीसें जो होती हैं सही होती हैं और ज़ईफ़ होती हैं, बस इतनी सी बात है। अच्छा, तज़किरा को लिखे हुए कितना अरसा हो गया है?
तज़किरा ज़ईफ नहीं होता हो भाई, यो क्या करी जा रहे हो बम्बास्टिक साहब, की करी जांदे हो पे मिर्जा साहब ने इल्हामां नूं तुसीं ज़ईफ करी जा रहे हो। और ये यार भाई एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡੁੱਲ ਜਾ ਯਾਰ ਤੂੰ। ये तज़किरा को लिखा हुआ कितने साल हो गए हैं जनाब? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। अच्छा उसमें से पढ़ने उस पे लिखा होता है। अच्छा उसमें से अभी तक कितने इल्हामात जो हैं वो आपने ज़ईफ करार देके निकाले हैं? मैं मुअल्लम नहीं है यार, है भी नहीं मैंने पता। माफ देखिए जी, मिर्जा बशीर साहब जो है ना, उन्होंने इसकी तरतीब दिलवाई थी तज़किरा की। अच्छा जी। और उन्होंने साथ में ये इसकी बड़ी ताकीद की थी कि ये तज़किरा जो है ये मिर्जा साहब के इल्हामात हैं, इल्हामात। और उन्होंने ये भी साथ में फरमाया था कि इसकी बड़े जोरों शोर के साथ मतलब ताकीद फरमाई थी कि तज़किरा का जो है ना तिलावत किया करें। अच्छा अबू बकर, ये हवाला लगाया जहाँ पे उन्होंने कहा कि तज़किरा की तिलावत किया करें, ये लगाए। मिस्टर बम्बास्टिक लो जी, एक क्या कमेंट जी, सुनाना एक कमेंट रुको जी। खैर जी, मिस्टर बम्बास्टिक, अबू बकर साहब एक आपको ना वाक़या सुनाऊं। आओ जी। टा खुल गया जे थे इना बड़ियां करे हो पढ़ते जाए जी। नहीं भाई, हमारा कोई पढ़ने का मूड नहीं है। इल्हामात के मजमुआ पढ़ने का मूड नहीं है। इल्हामात के मजमुआ सारी की ठंडी ठंडी बात करनी है तो करो, बिल नहीं तो आप पढ़ते रहो तो साथ में हो तलावत जाता। करने की ताकीद फरमाई थी। लो जी तो सर बात तो आपने उनकी मान ली, ओ, तो आप पढ़- ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ। कहंदे ने इनू कहंदे ने प्रोग्राम तो बढ़ गया। हेलो मज़ामीन आप ही बशीर पढ़ लें, आप ही जवाब दे लें, आप ही सवाल कर लें। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜੀ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ, आप ही सवाल कर लो, आप ही जवाब दे लो। ਹਵਾਲਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਚਲੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਨੇ। हाँ जी नजर साहब, एक ना पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल में ना लड़का था, किसी पिंड से आया, तो उसने कहा यार मैं ਚੀਨੋਂ ਕਿੱਧਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਤਜ਼ਕਰਾ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕੀਤੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਜੇ ਬਾਬਾ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ इसी का ही जवाब ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੋਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਤ ਖਲਾਤ ਹੋ ਗਿਆ। आ- अच्छा अच्छा, वो इसी का जवाब आ रहा है। तू जरूर भैन नु रंडी करना। और गाला शुरू हो लगे जी। आपके सामने है। चलो यार कोई बात नहीं, आपका उनका अपना प्यार, अब मैं क्या कर सकता हूँ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਓ। प्यार तो तब होता है अगर इसने मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दिया होता, तब तो प्यार होता। यार ये सारी ठीक है। रिश्ते विश्ते होते और रहेंगे, यार आप तो अपने मेरी घर बेटी खुश का रहो, वो मामू अपने घर लगता है, कोई शर्म कर। ओए तज़किरा दा की करना जी, ये तो मैनू दसो, मैं उन्हें नु हाथे लेके बैठे हां, की करा ਇਹਦਾ? अच्छा वो भजन यार जो कहानी सुन कुरान लो। में करना है पंजाब यार। यूनिवर्सिटी हॉस्टल में एक लड़का था, ओ यार तज़किरे दा पहले वाटर साहब को जो कट्टी कटा और कट ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੁਣ ਲਓਗੇ ਨਾ। ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦਾ, अच्छा, ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਹੀ चलो। ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਬਸ। चलो 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 बोलो। अच्छा, वो कहता है अपने दोस्त को, रूममेट को, कि यार मैं भी अंग्रेजी सीखनी है। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਆਕਸਫੋਰਡ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਜਾ। यानी कि उसने उसको एक दे दी 1200 सफ़े की डिक्शनरी कि तू याद कर ले। तो वो बड़ा पक्का बंदा था, उसने सारी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी जो थी ना वो याद कर ली। अब बात ये थी कि उसने सारी याद तो कर ली, मगर उसको पता नहीं था कि कौन सा लफ्ज़ कौन सी जगह लगाना है, क्योंकि ना उसको टेंस आते थे, ना डायरेक्ट इंडायरेक्ट, ना पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस, कख भी नहीं, ना ही कोई अंग्रेज़ी से वास्ता। बात आपको कहने का ये है कि आप सारों ने ना ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी याद कर ली है, और भाईजान तरकीब भी याद करनी है ना, उसको अप्लाई कैसे करना है ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਣਾ। हुदल लिल मुत्तकी। हाँ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਐਡੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਹਵਾਲਾ ये है, हवाला वो है, ये जस्ट लाइक डिक्शनरी याद कर लेना है। मिसाल बहुत अच्छी दी है बम्बास्टिक की कि बम्बास्टिक को जमात ने दे दिया तज़किरा कि ये लो पढ़ो तज़किरे को, तो इसको पता नहीं था तज़किरा जो है वो हैसियत क्या रखता है जमात में। आया इसकी हैसियत कुरान की है या हदीस की है, बस इसने तज़किरा उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया और उसको कह दिया कि तज़किरा में चंद जो तज़किरे हैं ना मिर्जा साहब के इल्हाम और वही वो है ज़ईफ, वो कमजोर है, उनकी हैसियत नहीं है। यार तो हम बाद आपको में ना ये वाली बात यार अब समझाना वाटर भी साहब हमने चाहिए। आपकी बात सुनी है ना, अब ये ऐसे तो ना करें। अब आपकी बोगी हमने सुन ली है, अब आपकी बोगी हम फिट करने लगे हैं तो आपको चलो तकलीफ यार होनी शुरू हो माफ गई कर है। दो मुझे,
अच्छा कोई नहीं, चलो खैर माफ कर देता, अच्छा माफ कर देता। तो अब जब उन्होंने तज़किरा दिया बम्बास्टिक साहब को पढ़ने के लिए, तो बम्बास्टिक साहब को अब तज़किरे की अलफ बे का भी नहीं था पता कि इसकी हैसियत क्या है जमात के अंदर। तो पढ़ तो लिया, फिर उसके ऊपर सवाल भी कर दिया एक हमारे साथी अबू बकर मीर साहब से कि बताओ किधर लिखा है कि इसकी तलावत भी करनी है, चलो शाबाश दिखाओ। फिर उन्होंने कैमरा ओपन करके कैसे अबू बकर साहब दिखाया आपने, जरा एक दफा फिर दिखा दी ना दिखाएं अच्छा, यार, पता नहीं है ना वाटर साहब की बात के मुताबिक नहीं, मैं बाबा जमील साहब एक बात और रहमत बाबा साहब एक जो बात अहमदी नहीं है। मजे की बात बताता हूँ एक और। अच्छा, ये जो तज़किरा है ना, ये अब इल्हामात की किताब तो हो गई, और मिर्ज़ा बशीर साहब का भी यहाँ पे पॉइंट आ गया, उन्होंने इसकी तिलावत का हुक्म दिया है। अगर आप कहें तो मैं आपको मिर्ज़ा साहब की बात ना दिखा दूँ। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मुझ पे जो कलाम नाज़िल होता है, मैं उस पे ऐसे ही ईमान लाता हूँ जैसे कुरान पे, तुरात पे, अंजील पे। ठीक है, मैं ठीक आप बात कर रहे हैं, ऐसे ही लिखा हुआ। तो आपने तो कहा इसमें ज़ईफ भी हैं। ओ यार कुछ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ सर ਦਿਮਾਗ इन्होंने खराब तो डिक्शनरी याद नहीं कर ली है, बाकी फिर इन्होंने पता यार नहीं। फिर अबू बकर मीर साहब फिर ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ यार खुदा दी कसम जा के ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੋ बेचारे के मरे हैं। आ जाके उठे जो देख अल्लाह ताला ने इन लोगों की अकलें मार दी हुई है। हवाला क्यों नहीं मांगा तुमने बम्बास्टिक से अबू बकर मीर से कि दिखाओ किधर लिखा है मिर्जा साहब ने। ये मैंने तो छੱਡ ਦਿਓ मुझे यार पता हवाले है को। कि ठीक है, तो मैं क्यों हवाला, जो मैं तो सच तेरी होता है तरह ना, पागल हूँ, मेरा दिमाग शोएब खराब राजा, है। आपके घर खलीफा साहब की दफा तो बड़ी जरूरत की है, दिखाओ किधर लिखा है खलीफा ने। वो मैंने नहीं आओ पढ़ा सामने। हुआ, और अभी भी मैं नहीं मानता, मैंने अभी भी नहीं पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा उसको अभी भी, लेकिन इसे से अबू बकर मीर साहब दोबारा से पढ़ाए। मैं एक गल करनी मेरी सुन लवो जो यार, मैं जो 2 मिनट बाद बोल लेना। जब बात निकाल तो बुजुर्ग आदमी है जी, बाबे वो सुनाओ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਚਲੋ ਆਂਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸੂਲ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ बाबा जमील साहब थे। यार बिल्कुल इम्प्लीमेंट मेरे पे भी होता है, उन पे भी होता है, सब पे होता है। मतलब ये कि जरा नहीं जानता का मतलब बाबा जी जमील साहब नहीं है, अहमदी नहीं ने। आपको मुबारक हो, फिर ये तो आपके बरादरी के निकले। नजफ अब्बास ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੁਢਾਪੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। कोई नहीं यार, कबूल कर ले, बड़ा अच्छे मुसलमान साबित होंगे ये। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸਤਰਿਆ ਬਤਰਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਰਕਿੰਸਨ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ये आप शुएब भाई, आप इतनी परेशानी ना लिया करें, जिंदगी बहुत सादी है और मजहब भी बहुत आसान है, तो इतनी परेशानी ना लिया करें। हमने अपना मजहब बिल्कुल आसान है, इस्लाम बहुत आसान है, लेकिन ये जो नया मजहब मिर्जा साहब ने इजाद किया ये मुश्किल है ना, बात तो इसकी हो रही है। तुम्हारे लिए क्या आपने कौन सा मुश्किल है, अडॉप्ट करना है? तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है यार, तुम हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हो, सबसे बेहतरीन रिलीजन में हो, खुदा का शुक्र अदा करो, ਢੋਲੇ ਮਾਈਏ ਗਾਓ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ਇਹ ਵੀ ਕਿਲਣ ਡੇ ਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਕਬਜ਼ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਜੀ ਲੈਗਜ਼ੇਟਿਵ ਖਾਓ। अच्छा है, पढ़ो हकीम लिख दे मिर्जा साहब। और पता नहीं यार कुशा है सामने लग गया है स्क्रीन पे, कब्ज कुशा। जमील साहब ਤੁਹਾਡੀ कब्ज दूर होने जी अबू बकर मीर साहब। कुरान करीम का कलाम ही ऐसा मिर्जा साहब कहते ने बस जैसा कि मैंने बार बार बयान कर दिया है, चल यार चल तो जैसा मैंने बार बार बयान कर दिया है डॉक्टर साहब तुसी बैठो जनाब, कि ये कलाम जो मैं सुनाता हूँ निकलो इधर से। तुसा नहीं जाना, वेख लवे हो। ये कतई और यकीनी खुदा का कलाम है, जैसा कि कुरान और तुरात खुदा का अब नहीं जाना तुसा। ओके, थैंक यू वाटर, बाय ब्रदर्स, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ। आप थैंक यू सो मच। ਇਹ ਜਾਨ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਬੇਲਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕਲਾਮ ਉਹ ਵੀ ਨਸ ਗਏ ਜੇ। ਲਓ ਲਾ ਹੌਲ ਵਾਲਾ ਕੁਵਤ ਇਲਾ। नासर नु बुलाओ जी, ਜਵਾਦ ठीक ਸਾਹਿਬ होगा ਨੀਚੇ बात। ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਠਹਿਰੋ ਜਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣੇ ਆ, ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਬੰਦੇ। नासर नु ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਾ ਬੜੀ ਨਾ, ਮੰਜੀ ਠਕਵਾਈ ਹੈ ਜਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਉੱਤੇ ਆਓ, ਇਸਮੂ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਿਟ ਟਾਪਿਕ, ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੇ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਬਕੌਲ ਤੇ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਇਸਮੂ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਫਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਵਾਈ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਦੀਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਿਲਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗਾਣੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਉਹ ਜਬਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਬਲੀ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਤਜ਼ਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਈਫ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਇਲਹਾਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਕਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਇੰਸ ਖੋਲ ਲੈਣੀ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਿੰਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਛੂਆ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦੀ 5000 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਓ ਨਾ ਤੁਸਾਂ ਗੋਬਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਲੈਰੀ? ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਲੈਰੀ ਦੇ ਸਿਰੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬੋ ਗੋਬਰ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜੀ ਸਾਇੰਸ ਸੁਣਾਣੀ ਜੇ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਉੱਤੇ, ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਖਾਣਾ। ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਰ ਕਿਸੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? YouTube ਵਾਲਾ ਉਹ ਯਾਰ ਅੰਨੀ ਪਾਤੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇੰਝ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਨਾ ਥੱਲੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਲਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਮੀਰ ਲਤੀਫ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ 9 ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਲੇ, ਤੇ 9 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਕੱਢ ਲਵੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਜੇ ਅਗਰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਗਈ ਗੱਲ, ਤੇ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਲਾਈਵ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੁਮੇ ਦਾ ਖੁਤਬਾ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵਿਊਜ਼ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ YouTube ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਚ ਫੈਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਚ ਫੈਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੈਂਕੜਾ ਨਹੀਂ ਟੱਪਦੀ ਵੀਵਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਰਾਤੀ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਮੁਦੱਲਲ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਹਿਮਦ ਦਿਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਦਮਾਤ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਿਕਾ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਖਤਲਾਫ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਦਮਾਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਮੌਜੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਹਿਮਦ ਦਿਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੁਸਾਲਿਕ ਹੈ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਆਲਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਮੌਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਤੇ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮੌਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ। ਦਿਨ ਤੇ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਟਕਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਹਿ ਲੋ ਜੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਜੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਮੋਡੀਨੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। मालक कैसर साहब सो कन्फर्म है। गावा जूस पड़ा है ना, गावा
एक पानी का बोतल है।